Good morning, students. This is Ankita Keshwani here. So, students, as you know, in our previous video lecture, we have started our chapter number 3, that is working with Windows 7. Okay, where we have learned up to the start button. Okay, so today I am going to start our next topic, that is the computer icon. Okay, the computer icon. Okay, so this is our next topic, the computer icon. So what is the computer icon? Let's see. The computer folder displays the contents of the computer's hard disk, CD drive, CD and DVD, or any other external storage media such as a pen drive. Okay, so the computer folder displays the contents of the computer's hard disk. ठीक है, जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के कंटेंट्स रहते हैं उनको डिस्प्ले करता है. ठीक है, सीडी और डीवीडी जो भी हम इसमें जब इसमें डालते हैं उसके ये कंटेंट डिस्प्ले करता है, और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया. ठीक है, और जैसे हम अपने फोन को या फिर पेन ड्राइव को ये सब यूएसबी केबल के थ्रू व्हेन यू आर कनेक्ट योर फोन विथ और अ पेन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल टू द लैपटॉप, दैट टाइम अ कंप्यूटर आइकन is used to display the contents of the computers of the computer's hard disk. Understand? So using the computer icon, okay, you can see a computer icon is look like this, and we can access and manages all the folders and files stored in a computer. Okay, with the help of this computer icon you can access and manage all the folders and files stored in a computer. It is useful for finding, okay, it is useful for finding, organizing, moving and copying files and folders in a computer. Double clicking on the computer icon opens the computer folder as shown in the figure 3.6. Okay, so let's see in this figure. You can see when you will click on this computer icon, when you will double click on this computer icon, it will open this screen. Okay, it will open the computer folder like this. So here you can see this is a back button. Okay, back button, it lets you navigate to the previously opened folders without closing the current window. Understand? And you can see after this it is a forward button. So after using the back button, okay, note this point, after using the back button you can use the forward button to again move to the current open window. ठीक है, विदाउट अगर बैक बटन यूज किया है उसके बाद ही आप फॉरवर्ड बटन यूज कर रहे हो. ठीक है, सो आगे जाने के लिए आपको पहले एक कदम पीछे भी आना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जब आप बैक जाएंगे तभी आप फॉरवर्ड का यूज कर पाएंगे. नाउ यू कैन सी दिस इज अ एड्रेस बार. ठीक है, जो भी आप फोल्डर्स ओपन करते हैं, ओके, सो वो उनका जो पाथ होता है वो यहाँ पे आ जाता है. ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. सो व्हाट इज द एड्रेस बार? एड्रेस बार डिस्प्लेज द कंप्लीट पाथ ऑफ द सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर्स. अंडरस्टैंड? यू कैन सी दिस इज सर्च बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू कैन सी सर्च कंप्यूटर. वाई यहाँ पे सर्च कंप्यूटर ही क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर है? सर्च के कंप्यूटर फोल्डर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सर्च कंप्यूटर. यानी कि जिस हम फोल्डर के अंदर रहता है ये हमको एक्सेस, ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस फोल्डर में कुछ भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, सो सर्च बॉक्स अलाउ यू टू क्विकली सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द करेंट फोल्डर. अंडरस्टैंड? In the current folder you can choose and you can search any files and folders easily by using this search box. Understand about this? So our back button is completed, forward button is completed, address bar is completed and search box is completed. Okay, now see toolbar. So this is a toolbar. ठीक है, यहाँ पे organize button दिया है, यहाँ पे इसके में एक drop down arrow बना हुआ है. So toolbar. So what is a toolbar? Toolbar provides buttons for common tasks according to the file and folder selected by you. ठीक है, जो भी आप फाइल्स एंड फोल्डर सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमको जो टूल बार है वो कुछ कॉमन टास्क प्रोवाइड कराता है. ठीक है,
navigation pane, it is the left pane that displays a list of drives and folders. यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर लोकल डिस्क सी डी ई, सो ये सारे डिस्क एंड ड्राइव्स है, ठीक है। सो ये इसकी लिस्ट हमको नेविगेशन पेन में शो करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन पेन, ओके। एंड नाउ यू कैन सी द राइट पेन, इट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर दैट हैज बीन सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। अंडरस्टैंड, जो भी यहाँ पे हमारा सेलेक्ट किया गया होगा, ठीक है, वो वाले कंटेंट हमको इस राइट पेन पे दिखते हैं। जैसे कि अभी हमको क्या यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, अभी कंप्यूटर सिलेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ओपन है, ये जो पूरा ओपन है ना ब्लैंक एरिया, जहाँ पे ये सी, ये इसको बोलते हैं राइट पेन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है, कंप्यूटर ओपन है, कंप्यूटर सिलेक्टेड है तो कंप्यूटर ओपन है। जब ये सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे ये ओपन होगा। अंडरस्टैंड, ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड। सो चलो इसे देख लेते हैं कंप्यूटर आइकन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मिनिमाइज करते हैं इसे। You can see, as you know, in my computer Windows, instead of Windows 7 there is a Windows 10 is installed, and Windows 10 the computer icon is named as this PC, okay, is named as this PC। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर आइकन से इसको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, बट Windows 7 में वो कंप्यूटर लिखा होगा, ठीक है। किसी किसी में माय कंप्यूटर लिखा होता है, मेरे में वो दिस पीसी लिखा है, ठीक है। सो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, डबल क्लिक किया, यू कैन सी इट इज ओपन। फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस आर सम फोल्डर्स, यहाँ पे लिखा है ना फोल्डर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दिखा दिए 7 फोल्डर्स है। यहाँ देख सकते हो डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 5। सो विंडोज सी जो अपना इनबिल्ट रहता है विंडो का, सी ड्राइव, न्यू वॉल्यूम ई, न्यू वॉल्यूम एफ एंड डीवीडी आरडब्ल्यू ड्राइव एच। तो यहाँ पे टोटल 5 डिस्क एंड ड्राइव्स है हमारे। अंडरस्टैंड, एंड ये समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे बैक बटन का यूज देखते हैं। बैक बटन, ये है बैक बटन। देखो जब मैं इस पे अपना माउस ला रही हूँ तो लिखा है बैक, और बैक के लिए शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर, इफ यू वांट टू यूज शॉर्टकट की टू गो बैक देन यू कैन यूज Alt प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। आपके Alt का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ में आप बैक बटन भी क्लिक करेंगे तो वो बैक हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बैक और फॉरवर्ड के फंक्शन देखो, आप देखेंगे ये हाईलाइटेड नहीं है, ये एक्टिवेट नहीं है। क्यों एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी बैक जाने पे कुछ आएगा ही नहीं। हम अभी और अंदर जाते हैं, देखो जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये बैक का बटन है वो एक्टिवेट हो गया। अब मैं बैक में क्लिक करूंगी, ये मैंने क्लिक किया तो देखो फॉरवर्ड का बटन एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब फॉरवर्ड कब जाएंगे, अब फॉरवर्ड में क्लिक करूंगी तो कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे। क्यों, क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप से बैक हुए थे ना, तो फॉरवर्ड करने पे हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप में। जहां से बैक करते हैं वहीं से हम फॉरवर्ड करने पे हम वहीं वापस जाते हैं। अंडरस्टैंड, so after using the back button you can use the forward button to again move to the current open window, okay. Understand, so this is your computer, this is about your computer icon. Here you can see this is a address bar, ठीक है। ये क्या है, एड्रेस बार है। चलो मैं और कुछ फोल्डर्स ओपन कर लेती हूँ। डेस्कटॉप ओपन कर लिया, डेस्कटॉप में क्लास 5th 1 का फोल्डर था, इसे ओपन कर लिया। एक मिनट ना, क्लास 4, देखो दिस पीसी में मैं न्यू वॉल्यूम ई पे जाती हूँ, न्यू वॉल्यूम ई पे गई, ठीक है। वहां पे क्लास 4 का फोल्डर है, क्लास 4 में कंप्यूटर, इंग्लिश, ईवीएस, जीके, हिंदी, मैथ, सिलेबस, बहुत सारे फोल्डर्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर फोल्डर ओपन करती हूँ, ठीक है। तो अभी आपको पता चल रहा है ये सारी फाइल्स कहाँ पे है। अगर मैं पूछूंगी कि इस फाइल का लोकेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, ये फाइल जो है दिस पीसी के अंदर एक न्यू फोल्डर, न्यू वॉल्यूम ई करके ड्राइव है, उसके अंदर क्लास 4 नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर कंप्यूटर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल रखी गई है। अंडरस्टैंड, तो ये क्या है, इन पर्टिकुलर ये सारी फाइल्स का, ठीक है, सारी फाइल्स का ये जो है ये पाथ है, पाथ, ठीक है। सो वी हैव टू फॉलो दिस पाथ टू रीच दिस फाइल्स। अंडरस्टैंड, सो ये हमको इतने सारे पाथ मतलब फॉलो करना पड़ेगा हमको इतनी सभी फाइल्स तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज अबाउट द एड्रेस, सो दिस इज नोन एज एड्रेस बार। अंडरस्टैंड,
नाउ यू कैन सी सर्च कंप्यूटर। क्यों लिखा है सर्च कंप्यूटर? क्योंकि अभी हम किसके अंदर है? कंप्यूटर फोल्डर के अंदर है। देखो मैं बैक जाती हूँ ना, तो अभी हम कहाँ जाएंगे? क्लास 4 में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? सर्च क्लास 4। ठीक है, यानी कि अब हम क्लास 4 में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब देखो फिर बैक जाती हूँ, तो अब बोलेगा सर्च न्यू वॉल्यूम ई, यानी कि जो हमारी ई ड्राइव है ना, उस पे ये सर्च करने बोल रहा है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। मैंने एक फोल्डर बना के रखा था सर्कुलर करके, ये सर्कुलर नाम, सर्कुलर यहाँ पे मैंने टाइप किया। जैसे ही टाइप करी तो देखो न्यू वॉल्यूम ई में सर्कुलर रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो मुझे हाईलाइट होके दिख रही है। फ्रॉम हियर यू कैन इजिली सर्च योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। अंडरस्टैंड? इवन यू कैन सर्च योर ड्राइव्स ऑल्सो। जैसे दिस पीसी है, अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है, मैंने ई लिखा, तो ई से रिलेटेड जो भी है वो आपको दिखेगा, चाहे वो ड्राइव्स हो जो भी है। ठीक है, अंडरस्टैंड? देखो अभी भी सर्च चल ही रहा है। So this is about search bar, and you here you can see the navigation pane. यहाँ पे आप देख सकते हैं नेविगेशन पेन है, और यहाँ पे जहाँ पे आपको द लेफ्ट पेन दैट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख रही है ड्राइव्स एंड फोल्डर्स की। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द नेविगेशन पेन। एंड हियर यू कैन सी द राइट पेन। अभी हमारा कंप्यूटर सेलेक्टेड था, मतलब दिस पीसी है, इसलिए दिस पीसी वाला दिख रहा है। जो भी सेलेक्टेड होगा तो ये वाला जो एरिया है इसे राइट पेन बोलते हैं, वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? Very good. So this is about your computer icon. Understand? Very good. Now come to the next topic. That is files and folders. Okay, files and folders. So what is a file? Let's see. It is a collection of related information stored together on some storage devices, such as the hard disk, CD drive, DVD, or pen drives. As we keep important papers in a file, similarly, any information in a computer is saved in the form of a file. Each file is given a file name which helps us to find the desired file. Understand? Which helps us to find the desired file. Understand? Here you can see this quick view. Okay, so underline this line, this point, and note down this point in your notebook. ठीक है, स्पेशल नोट करके लिखना, एक हेडिंग डालना पेज पे नोट्स करके, स्पेशल नोट्स करके। ठीक है, बस नोट्स भी लिखोगे तो चल जाएगा। ऐसे करके एक मेन हेडिंग डालना और उसमें ये लिखना, और वो पेज को छोड़ देना, ये लिख के छोड़ देना, क्योंकि आगे मैं जो भी अगर कुछ नोट करने बोलूंगी आप उसी में कंटिन्यू करते जाना। फिर प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट टू डिलीट एनी फाइल्स एंड फोल्डर्स परमानेंटली। परमानेंटली मीन इट विल बी deleted from your devices permanently. That means you can't restore that file from your recycle bin. Understand? जो भी आप डिलीट करते हैं आप रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर सकते हैं, बट इफ यू यूज शिफ्ट प्लस डिलीट टू डिलीट एनी फाइल्स एंड फोल्डर, देन दैट मीन्स you can deleting that file permanently. Understand? So what is a file? File is the collection of related information stored together on some storage devices such as hard disk, CD, DVD और pen drive. As we keep important papers in a file. ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे papers होते हैं। For example, जब आप क्लास टेस्ट दिलाते हो या कभी अब क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम पेपर कॉपीज के बीच से 2 पेपर निकालते हैं, उस पर टेस्ट देते हैं। लेकिन ऐसा भी तो रखते हैं ना कि हाँ हमको ये टेस्ट पेपर संभाल के रखने, फेंकने नहीं है। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, टेस्ट पेपर निकाल निकाल के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। तो उस टाइप से आप पेपर निकाल के वो पेपर को आप हमेशा अपने पास संभाल के रखते हैं। तो वो पेपर्स को आप कैसे संभाल के रखते हैं, एक फाइल लेते हैं, उस पे फाइल पे आप सारे अच्छे से फंसा के रखते हैं। ठीक है, सो उसी तरह कंप्यूटर में जो फाइल्स होती है वो एक फाइल होती है, वो पर्टिकुलर उस फाइल में हम किसी पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, दूसरी फाइल होगी वो उसका जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइल्स बना के रखी है, मैंने फोल्डर्स बना के रखे हैं। ठीक है,
मिनिमाइज करते हैं। यू कैन सी हियर, जैसे ये ई ड्राइव है, ई ड्राइव में मैंने यू कैन सी दिस क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, यहाँ से मैं इजीली डिफाइन कर पा रही हूँ। अगर मुझे पता करना है कि क्लास 5th की कंप्यूटर मैंने क्या क्या पढ़ाया है या कितने चैप्टर्स हुए हैं या फिर जो भी इसके रिलेटेड मेरे को चाहिए, कंटेंट चाहिए, ठीक है, मटेरियल चाहिए, तो मैं सीधा क्लास 5th का फोल्डर बना के रखी हूँ और क्लास 5th से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ, क्लास 5th के फोल्डर में। वैसे ही देखो क्लास 4th का एक फोल्डर बनाए, क्लास 4th के में कितने सब्जेक्ट है आपके, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ईवीएस है, जीके है, हिंदी है, मैथ है एंड जो भी आपका सिलेबस वीकली चेंज होता है तो वो उसकी डिटेल्स है। तो मैंने यहाँ पे सारी एक अलग अलग बना के रखी है फोल्डर्स, जिसपे आपके सारे डेटा स्टोर है। हिंदी में हिंदी का स्टोर है, मैथ में मैथ्स का स्टोर है, जीके में जीके का है, जीके में भी कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। सो इस तरीके से स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है, इट इज इजी टू एक्सेस, है ना। ये प्रोसेस क्या होता है, इजी हो जाता है। जब हम एक बार मेहनत कर लेते हैं, दूसरी बार हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो हमारे लिए इजीली हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से आपने फाइल्स बना के रख दिए, अब आप जब चाहे इजीली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक स्पेशल फाइल नेम दे दिया, गिवन अ फाइल नेम, जैसे मैंने क्लास 4 करके एक फोल्डर बना दिया। खैर अभी ये फोल्डर है, फाइल नेम भी ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फोल्डर, दीज आर नॉट फाइल्स, दीज आर फोल्डर्स। तो ये जैसे क्लास 4th है, क्लास 4th के अंदर और बहुत सारे अपने फोल्डर्स है, जैसे सिलेबस है। अब सिलेबस के अंदर देखो मेरी फर्स्ट फाइल है क्लास 4A सिलेबस डिडक्शन, मतलब जो भी मेरा है ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम बना के रखते हैं, ठीक है, समझ में आया। Okay, so this is about files. Now see folders. As we keep all our files in a file cabinet, ठीक है, जैसे कि हम सारी अपनी फाइल्स को किस में रखते थे, पेपर को किस में फंसा के रखेंगे, अपने फाइल्स में हम लोग एक अच्छे से उसको पुट करके रखेंगे, ठीक है। सो यू कैन सिंपली similarly a folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. A folder can hold other folders as well. A folder within a folder is called a subfolder, okay। देखो, you can differentiate a file from a folder with the help of icons associated with them। देखो जो फोल्डर्स होगा ना वो हमेशा आपका कुछ येलो कलर में होगा और फाइल जो होगी वो इस तरीके से, मतलब आपको लगेगा कि कोई पेज है, ठीक है। तो फाइल जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, पेज जैसी दिखेगी। सो इसका होता है डबल क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ये होता है फोल्डर्स। जब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपको फाइल शोज होगी या फिर जो भी उसमें स्टोर्ड है वो शो होगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो यू कैन सी दीज आर सम फोल्डर्स, ठीक है। जैसे न्यू वॉल्यूम ई पे आ जाते हैं, ये जो है येलो कलर से दिख रहा है वो क्या है, ऊपर के क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 कंपटीशन, ये सारे क्या है, ये फोल्डर्स है। और ये जो है जो पीडीएफ फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, ये फाइल है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस फाइल you can see a document page is open, a document page will be open, okay। You can see it will take a time, Microsoft Word Office 2009 is starting, okay। So you can see it is open like that, ठीक है। तो अभी क्या ओपन हुआ, एक पेज ओपन हुआ, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से हम जो भी ओपन करते हैं फाइल्स में तो वो पेज ओपन होता है। अब जब मैं व्हेन यू ओपन अ फोल्डर, ओके, व्हेन आई ओपन अ फोल्डर यू कैन सी, जब ओपन किया फोल्डर को तो हमको यहाँ पे जो भी स्टोर है उसमें हर टाइप की फाइल दिख रही है। एक फोल्डर के अंदर आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो। मैंने अभी किस फोल्डर के अंदर हूँ, क्लास 3 फोल्डर के अंदर हूँ। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, क्लास 3 1 कर देती हूँ, क्लास 3 1, ठीक है, 3 1। सो ये क्लास 3 के अंदर ये सारी जो है वो फाइल्स है, ठीक है। ये वीडियो फाइल्स है, ये पीडीएफ फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल भी बना सकते हैं, जिस टाइप की भी फाइल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और क्लास 3 के अंदर मैंने एक फोल्डर भी बनाया है क्लास 3 1 के नाम से। सो दिस फोल्डर इज कंसीडर्ड एज द सब फोल्डर ऑफ class 3 folder, understand। So class 3 is a main folder and the class 3 1 is a sub folder, okay, understand।
So you can differentiate a file from a folder with the help of the icons associated with them. So you can see a folder is look like this and some files are look like this. You can see the PDF file for an example. Understand? Video file होगी वो video clips कुछ इस तरह से दिखती है. ठीक है? A folder can hold other folders as well. A folder within a folder is called a subfolder. Understand? A folder within a folder is called subfolder. ठीक है? Now see next topic. So this is about files and folders. Understand? This topic is completed. Now see next topic. That is creating a file. How to create a file? The most common method to create a file is by using any application software. If you want to create a file, so first you have to use some application software. Application software means some software like Microsoft Word, MS Access, MS Excel, PowerPoint, PDF files. So this type of application software you can use. So open Microsoft Word, a blank page is displayed on the screen. Start typing text on the blank page. Okay. After completing your work, save your file using the File tab, Save option, and type a file name in the Save As dialog box. This create a new file. So चलो इसे देखते हैं कैसे how to create a file. ठीक है? Let's see. So first we have to open any application. So we are opening this Word document. Okay. And click on this blank document to open the any blank document. Okay. यहाँ से आपको दिख रहा है. You can see a blank page is displayed on the screen. Start typing on the blank page. Okay. So I am writing here. My name is Ankita Kesharwani. Okay. I am the class teacher of class 4A. ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट लिखा. अब देखो यहाँ पे केशरवानी पे यहाँ पे मेरे को नीचे अंडरलाइन हो गया रेड से. क्यों हुआ है? क्योंकि केशरवानी कोई वर्ड है क्या? मतलब कि कोई इंग्लिश वर्ड है क्या जिसकी कोई मीनिंग हो? नहीं, इट इज अ सरनेम. तो नेम्स जो सरनेम्स ये सब सारे होते हैं इस पे आपको एरर शो करते हैं. तो ये एरर शो कर रहा है. अंकिता पे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने पहले इसे इग्नोर में रखा हुआ है. ये मैंने बहुत बार यूज किया है. मेरी जो यहाँ पे आईडी है वो भी अंकिता की, तो इसे वो एरर नहीं शो कर रहा है. बट अभी यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है. सो जो भी एरर शो करेगा तो यहाँ पे हमको कुछ करेक्टेड स्पेलिंग शो करता है वो अपने अकॉर्डिंग. यू कैन इग्नोर ऑल. क्लिक ऑन दिस इग्नोर ऑल. तो जहां जहां मैं इस डॉक्यूमेंट में केशरवानी वर्ड यूज करूंगी वो वहां पे एरर शो नहीं करेगा. इग्नोर ऑल की देखो अब नहीं कर रहा है. ब्लू हो गया है. ब्लू क्यों हुआ है? क्योंकि जब हमारा यहाँ पे पंचुएशन मिस्टेक होती है तो वो वहां पे ब्लू टाइप से करता है. टेक अंडरस्टैंड. अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं. सो सी हाउ टू सेव अ फाइल. क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे. When you will click your file first time, then that time you have to click on save as option. Okay, so click on save as option. As you can see, as you click on this save as option, it will ask you about folders. मतलब कि कहाँ पे location where you want to save your file. So I am choosing e folder. ठीक है, ई फोल्डर लिया. अब ई फोल्डर पे मैंने क्लास 4 का फोल्डर सेलेक्ट किया. क्लास 4 के अंदर मैंने कंप्यूटर का फोल्डर सेलेक्ट किया. इसके अंदर मैं फाइल सेव करती हूँ. अब यहाँ से आप अपने फाइल को नेम दे सकते हो. फाइल नेम पूछ रहा है, फाइल नेम कौन सा है, तो यहाँ से हम फाइल नेम दे देते हैं. देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम जब सेव करने जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जो भी फर्स्ट लाइन लिखी रहती है ये इसे ले लेता है. ठीक है, फर्स्ट लाइन के कुछ वर्ड्स को ये एज अ फाइल नेम अपने से ले लेता है. तो हमको ये फाइल नेम नहीं चाहिए. ठीक है, तो मैं अभी इसको फाइल नेम दे देती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं भी आपको एज एन एग्जाम्पल इसे बता रही हूँ ना. सो मैं यहाँ पे फाइल नेम लिख रही हूँ एग्जाम्पल क्लास 4.
ठीक है। अब देखो, आप हमेशा ये नोटिस करते होंगे कि जैसे एग्जाम्पल और क्लास के बीच मैंने ये अंडर स्कोर क्यों यूज किया। अंडर स्कोर यूज करने से क्या हो जाता है, आप आईफन मत यूज करना कभी, आईफन से वो अलग अलग एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होती है। अंडर स्कोर से क्या होता है कि इजी टू रीडेबल, ठीक है, आपको ये पता चल रहा है, आप इसी में दो वर्ड्स में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि एग्जाम्पल लिखा है, ये क्लास लिखा है। अब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी तो आप जब फर्स्ट टाइम इसे देखेंगे तो आप एक बार में समझ में नहीं पाएंगे कि एग्जाम्पल क्लास ऐसे लिखा है। तो ये दो वर्ड्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए और इजी टू रीड, ठीक है, वी आर यूजिंग अंडर स्कोर हियर। सो आप अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते बस एग्जाम्पल कर सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं 1। इस टाइप से अपनी फाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ आफ्टर गिविंग अ नेम टू योर फाइल यू कैन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, ठीक है। सो यू कैन सी योर फाइल इज सेव्ड एंड हियर यू कैन सी द नेम ऑफ योर फाइल example1, ठीक है। वर्ड फाइल है इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब आप इसमें जो भी चेंजेस करते, जैसे कि मैं अभी इसमें और कुछ ऐड कर देती हूँ, लाइक दैट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द मोस्ट कॉमन method to create a file is by using any application software, any application software, ठीक है। अब इसमें मैंने चेंजेस किया, पहले तो जब मैंने इतना लिखा था तब मैंने एक फाइल सेव की थी, अब मैंने ये चेंजेस किया है, तो अगर मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली क्लोज कर देती हूँ तो ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से इरेज हो जाएगा। चलो देखते हैं, मैं इसे क्लोज कर दी, ठीक है। तो अगर क्लोज कर रही हूँ तो ये हमें से पहले पूछ रहे हैं वांट टू सेव योर चेंजेस टू example1, क्या आप सेव करना चाहते हैं आपने जो भी चेंजेस किए हैं। इफ यू क्लिक डोंट सेव अ रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्पररली अवेलेबल, ठीक है। अगर आप सेव में डोंट सेव में करते हो तो इसकी जो एक कॉपी है वो बन के आपके पास अवेलेबल रहेगी, यानी कि जो आप ये वाली जो लाइन है ना द मोस्ट कॉमन मैथड, वो नहीं होगी, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है वो उसके साथ रहेगी। मैं डोंट सेव में क्लिक कर रही हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। फाइल क्लोज हो गई। अब फिर से हम ओपन करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट और अपनी पुरानी फाइल, ये एग्जाम्पल थी ना, इसे ओपन करते हैं। तो यू कैन सी हमने सेव नहीं किया था, इसलिए जो इसके बाद जो कंटेंट ऐड किए वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, यहाँ से रिमूव हो गए, क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे फिर से अब मैं उसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब हम इसमें अब मैं से कीबोर्ड में कंट्रोल और एस ये दोनों की एक साथ प्रेस करके सेव कर रही हूँ अगेन, ये मैंने सेव किया, ठीक है, सेव कर दिया। एक बार मैं आपको यहाँ से भी सेव करके दिखाती हूँ, सेव, ठीक है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, सेव, ठीक है। तीन तरीके दिखाए, एक तो यहाँ से फाइल में जाके आप कर सकते हैं डायरेक्टली सेव एज और सेव का यूज, or you can use this icon, or you can use keyboard, okay, some keys control plus s option, okay। अब मैं इसे क्लोज कर रही हूँ तो ये मुझे अब क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि सेव करना है कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली जितने भी चेंजेस किए मैं उसे सेव कर चुकी हूँ। अब देखो मैंने उसे क्लोज किया, यहाँ पे मैंने सेव करके क्लोज किया था तो मुझे दोनों लाइन दिखेगी। अंडरस्टैंड। सो ये आपको समझ में आया, ओके। So this is about how to create a file and how to save any content on this on a file. Understand? So now this topic is also completed. Now see how to create a folder. Creating a folder. So right click on the blank area of the desktop. Okay, so you can right click on the blank area of the desktop, or either you can click on the desktop or you can click on anywhere where you want to use where you want to click create your folder. Understand? जहां भी आपको डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे जाके आप कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी कहीं पे भी किसी फोल्डर के अंदर भी जाके कहीं ब्लैंक एरिया पे आप राइट क्लिक करते तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ओके। हियर अ शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास ये पूरे ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमको न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर्स, अब यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस दिखेंगे।
Click on the folder option. A new folder icon will be displayed on the desktop. ठीक है, type a name for the folder at the cursor position and press the enter key. A new folder is created. चलो देखते हैं. ठीक है, ये डेस्कटॉप है. सो फर्स्ट स्टेप क्या था, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. ओके, ठीक है, तो ये ब्लैंक एरिया है डेस्कटॉप का, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं. कर लिया. ठीक है. सो अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स. ये आपको शॉर्टकट मेन्यू दिख रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या किस पे क्लिक करेंगे, प्लेस द पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन. जैसे ही देखो मैंने अपना ये जो माउस का जो पॉइंटर है ये न्यू ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे ही इसे प्लेस करती हूँ. ठीक है, व्हेन आई ब्रिंग माय माउस पॉइंटर ऑन द न्यू on the top of this new option, you can see a list of subtitles, sub options appears. Okay, so these are a list of sub options. Understand? Click on the folder option. A new folder icon will be displayed on the desktop. As you click on this folder option, ठीक है, you can see a new folder icon will be displayed on the desktop. मैंने क्लिक कर दिया, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे फोल्डर, न्यू फोल्डर लिखा है उसमें. ठीक है. टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस द एंटर की. अब देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखा है और वो ब्लू में है, तो मैं इसे बैक स्पेस अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस का जो बटन है वो प्रेस कर रही हूँ. ये नेम हट गया, ये मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. अब मैं यहाँ पे नेम सर्च कर डाल देती हूँ. ठीक है, क्या नाम डालूं, ओके मैं जून के नाम से कर देती हूँ क्योंकि दिस मंथ इज जून, तो मैं जून के नाम से करती हूँ. ठीक है. सो ये फोल्डर मेरा बना नहीं है अभी क्योंकि मैंने अभी बस इसे नेमिंग दी है. अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी यू कैन सी योर फोल्डर इज क्रिएटेड. ओके, एज आई क्लिक ऑन दिस एंटर बटन यू कैन सी योर फोल्डर इज क्रिएटेड. नाउ यू कैन सी. ठीक है, so this is created. So this is about how to create a new folder. So first you have to click on any blank area of your desktop or anywhere you want to create a new folder. You can click there and now click on this new option. ठीक है, जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे यू कैन सी फोल्डर. आप फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ बिटमैप इमेज, न्यू बिटमैप इमेज. यू कैन क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. जो भी आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू ऑप्शन. ओके, और फर्स्ट में आपको फोल्डर दिख रहा है, फोल्डर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं इजिली. अंडरस्टैंड? वेरी गुड. सो दिस इज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर. So students, that is enough for today. In our next class, we will cover our next topic. Okay. So that is enough for today. और जो भी मैंने आज बताया आप इसकी अच्छे से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें. अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है एट होम, एट योर होम, ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. अंडरस्टैंड? ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर.